The next topic is the forest. At one time, many parts of the earth were covered by a thick forest, but only a few forests remains today. ठीक है, एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास अर्थ पे जो था बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, बहुत थिक फॉरेस्ट थे, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि बहुत फॉरेस्ट जो हो गए वो बहुत कम हो गए. ठीक है. वन ऑफ द रीज़न इज़ डैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स अवर्स. एक उसमें से रीज़न ये है कि हमारे पास जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है. मोर स्पेस इज़ नीडेड फॉर द होम्स, फॉर्म्स, फैक्ट्रीज एंड रोड्स. जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगी, हमारी नीड भी क्या होगी, ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें लेने के लिए, तो हमारे पास होम्स, फॉर्म्स और फैक्ट्रीज और रोड्स के लिए भी ज़्यादा जगह नीडेड है. तो जब हमें जगह चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट ऑफ कर देते हैं. वहाँ पे डिफरेंट एग्रीकल्चर, अर्बन एरियाज़ और डिफरेंट सिटीज़ हम क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. दैट इज़ रीज़न वाई द फॉरेस्ट becomes few today. On the map below, you show the two main forest regions of the world. One is the equatorial forest and the second one is a temperate forest. And this light green is the parrot color. This is the equatorial forest which is located near to the equator. ठीक है. And this is the equatorial, this is the temperate forest. This all green area is a temperate forest which is located between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer. You will notice that the equatorial forests are close to the equator, spreading north and south of its to the tropic, while most of the temperate forests lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. ठीक है. अब हमने भी यहाँ पे नोट किया है कि हमारे पास जो है equatorial forest that is located below, that is located at the equator side, and whereas the temperate forest is located here between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer. So there are two main types of the forest. One is the equatorial forest and the second one is the temperate forest. Number one is the equatorial forest. Equatorial forests are also known as the tropical rainforest, are found in the South American countries of Ecuador, Colombia and Brazil, in the Africa countries of Liberia, the Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea and the Congo and the Democratic Republic of Congo, and in the Southeast Asia country of Indonesia, Myanmar and Burma and Malaysia. So these all are the areas where the equatorial forests are located. ठीक है. Equatorial forest को हम tropical rain forest भी कहते हैं. ठीक है. Tropical rain forest is the second name of the equatorial forest. These regions are also called the hot wetlands. These are also called the equatorial forest, or these are the areas where the equatorial forests are present. These are also known as the hot wetlands. We call it the hot wetland because the temperature have very high. टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा आती है. सम ऑफ द कंट्रीज वर वंस कम्प्लीटली कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट. इसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि हमारे पास एक टाइम ऐसा था जबकि ये बिल्कुल थिक फॉरेस्ट से क्या थी, कवर थी. The equatorial regions receive a lot of sunshine and it's therefore very hot. अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या है, इक्वेटोरियल रीजन्स में हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है, लॉट ऑफ सनशाइन होती है. जब लॉट ऑफ सनशाइन होती है तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है. When there is a bright sunshine, जब हमारे पास बहुत तेज़ धूप होती है, the earth heats up, जो हमारे पास अर्थ ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाती है, and
डज द वाटर, और वाटर भी जो होता है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। जब वाटर हीट अप होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर द वाटर एवेपोरेट्स हो जाता है एंड फॉर्म्स द क्लाउड्स एंड देन इट रेन। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हीट अप हो जाती है, अर्थ हीट अप होती है तो वाटर भी हीट अप होता है, वाटर हीट अप होता है तो एवेपोरेट होता है और फॉर्म करता है क्लाउड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होती है, रेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, in the equatorial forest, the average rainfall in a year is 200 to 250 सेंटीमीटर। सो इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमारे पास एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 200 टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज स्टिल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट है हमारे पास कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में है, इसको हम स्टिल वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, these forests are very important as they are a source of oxygen for all living things and are known as the lung of the earth। ये फॉरेस्ट जो हमारे पास है ये क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा important है, because these are the source of oxygen for all living things and are known as the lungs of the earth, because there is a too much tree, when there is a too much tree there is a too much oxygen and there is a, so these are called the lungs of earth। The heavy rainfalls and fertile soil make it possible for plant to grow quickly। There are some plants that grows 50 सेंटीमीटर इन अ डे। अब हमारे पास जब हैवी रेनफॉल होती है, फर्टाइल सॉइल हो जाती है, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो 50 सेंटीमीटर इन अ डे में ग्रो करते हैं इन दिस रीजन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, द फॉरेस्ट आर थिक एंड lush and all trees forming a canopy high above the ground। और ये इतने थिक और इतने लश होते हैं कि एक कनोपी सिस्टम, मतलब एक अम्ब्रेला की फॉर्म बनाते हैं, ग्राउंड के ऊपर एक अम्ब्रेला की फॉर्म बना लेते हैं, कनोपी की फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, all the smaller plants grow too because they are trying to reach the sunlight। और जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, सन लाइट को रीच करना चाहते हैं, इस वजह से वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट वो भी क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट व्हेन अ ट्री डाइज और इज chopped down it does not crash to the ground, it merely rests against the other trees close by। अब ये फॉरेस्ट इतना थिक है, जब हमारे पास कोई भी पौधा या कोई भी प्लांट हमारे पास जो होता है वो चॉप्ड हो जाता है या क्रैश हो जाता है, तो ग्राउंड के ऊपर जो होता है वो क्रैश नहीं होता, क्योंकि वो इतना थिक होता है कि वो दूसरे ट्री के अगेंस्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसके साइड बाय साइड जो होता है वो, मतलब रेस्ट, मतलब अब यहाँ पे एक ट्री कोई टूटा है तो ये एक ट्री है, तो यहाँ पे कोई ट्री टूटा है तो वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर दस नहीं जाएगा, बल्कि वो एज अ सपोर्ट यूज़ होगा दूसरे ट्री के साथ। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट। अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, जिन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग अ डिफरेंट मेडिसिन। द ग्रेट वाराइटीज ऑफ आवर ट्रीज एंड थिक अंडरग्रोथ प्रोवाइड्स एनिमल्स विद अ गुड होम्स। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेट वाराइटीज ऑफ ट्रीज़ हैं और हमारे पास थिक अंडरग्रोथ है, मतलब बहुत घने घने जंगलात हैं ये, तो जिसकी वजह से एनिमल्स को ये क्या करते हैं, गुड होम प्रोवाइड करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स इन दीज फॉरेस्ट, इन फैक्ट देयर आर सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज दैट मैनी हैव नॉट इवन बीन नेम्ड। अब यहाँ पे वो छोटे छोटे इंसेक्ट इस फॉरेस्ट में, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, इतने ज़्यादा स्पीशीज़ हैं हमारे पास कि कुछ स्पीशीज़ उनमें से ऐसी हैं जिनको नाम भी नहीं अभी तक दिया गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पे हैं। बर्ड्स एंड लार्जर एनिमल्स आल्सो लव द फॉरेस्ट। बर्ड्स और जितने भी लार्जर एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट को लाइक करते हैं, बिकॉज दे आर सो थिक। सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी कलरफुल। कुछ बर्ड जो उसमें जो है वो बहुत कलरफुल है। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स इंक्लूड, बहुत सारे बड़े जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड हैं, लेपर्ड,
elephant, hippopotamus and wild buffaloes। और वहाँ पर क्या है, वाइल्ड buffaloes भी वहाँ पर होती हैं, ठीक है। There are also crocodiles and plenty of the snake, और बहुत ज़्यादा crocodiles भी हमारे पास होती हैं and plenty of snakes भी हमारे पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। And of course there is the varieties of the monkeys, और monkeys भी हमारे पास होती हैं। So these are the different animals that located here, that live here in the equatorial forest. The people of the equatorial forest are usually tribal. In the central African rainforest there are pygmies who are very short dark peoples। अब ज़्यादातर यहाँ पे जो है ट्राइब्स रहते हैं हमारे पास, और सेंट्रल एशिया में हमारे पास जो है पिगमाइज who are very short dark people। पिगमाइज, what are the पिगमाइज? पिगमाइज are very short and the dark color के ये peoples होते हैं, ठीक है, which live in the central Asia rainforest. In the South American and the Asian forest there are other tribes, all these peoples are very good hunters। यहाँ पे डिफरेंट और भी लोग रहते हैं, ट्राइब्स के, डिफरेंट ट्राइब्स के कबीलों के और भी लोग रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड हंटर्स। ये क्या है, हमारे पास शिकार बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। Because of the dense vegetation it is difficult to travel through these forest। यहाँ पे बहुत हमारे पास dense मतलब ज़मीन के अंदर बहुत गहरा वेजिटेशन जो होती है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह बहुत डेंस होते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल करना ईजी नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। द पीपल हु लिव देयर आल्सो हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन क्लीनिंग लैंड्स एंड फॉर कल्टिवेशन। तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि कल्टिवेशन के लिए वो लैंड को क्लियर करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है।